Very good day to all of you. And as we are heading towards the UPSC preparation of our law subject, our next topic comes, that is Legal Services Authority. Our Legal Services Authority is basically governed by Legal Services Authority Act 1987 in our country, which actually forms the crucial piece of legislation for the UPSC Civil Services examination, especially talking about the law subject as an optional, and also for General Studies Paper 2, that is Polity and Governance. It is very essential to understand its provisions in the context of India's commitment to social justice and other constitutional mandate of free legal aid. As we had already covered the topic legal aid, you will be understanding that how legal aid is actually applicable by using this Legal Services Authorities Act. So, as we know, at every lecture at the starting we just read out the question so that we could know that what things are going to are actually asked in the question paper by UPSC. So the first question is, discuss the role of legal services authorities in ensuring access to justice in India. This was the question asked in 2023. As we know the process, that we'll just read the questions and move towards the topic, and later on, after completing the topic, we will be discussing the key heads or the keywords, or the format of the answers which we are going to write. Legal aid is not a charity but constitutional obligation of the state. Elucidate in light of judicial decisions. In this we have to mention the case laws also. When the paper is about the optional law subject, the key role is played by the case laws, the landmark judgments. Explain the statutory framework for free legal aid in India. How effective has it been in ensuring justice to marginalized? So basically, all three questions were asked specifically from Legal Services Authorities Act. Now, moving ahead, that is the basic introduction of Legal Services Authorities Act 1987. This is the statutory act which we follow while fulfilling the Article 39A. 39A is the bedrock of this act. And why I'm saying this, the word bedrock, because Article 39 says that it's a directive principles. That means it is a guideline provided by constitution to the state. So therefore it obligates the state to ensure that the legal system operates in a way that promotes justice on the basis of equal opportunity. That means it specifically directs the state कि there must be free legal aid provided to the citizens or provided to the persons for securing justice. And why this legal aid is provided? Because maybe that citizens, by some reason of economic or some other kind of disabilities, they cannot afford the same. So for fulfilling this gap, it is needed that free legal aid is provided. Next comes, provides free legal services to weaker sections. These weaker section is the vulnerable people, those citizens which cannot afford the legal aid, or they are not able to afford by the reason of economic or some other disabilities which they carry. But in between this, I would like to also mention Article 14 and 22 first. These article guarantees equality before law and also the right to legal representation. And why the legal representation is important? Because they are fundamental to the Act's purpose. Next comes establishment of these key organizations: NALSA, SALSA, DALSA, TLSC. In this act, it establishes the hierarchical structure of legal services authorities to provide nationwide and uniform network for legal aid. First is national level, therefore NALSA. NALSA is National Legal Services Authority. Second is SALSA, State Legal Services Authority. DALSA, District Legal Services Authority. And TLSC, that is Taluk Legal Services Committee.
This also promotes lok adalats and legal literacy. The reason of lok adalats is to make people aware that it is binding of it is a kind of people's court, and the decision of this court is binding on all the parties, and there is no appeal. Legal literacy, because the person must know that what are the rights they actually carry, and if they are into some kind of legal issues, what other rights, like providing of legal aid by the state itself, it is the provision that state should provide. So what kind of awareness a person should carry, this comes from the legal literacy, and this act promotes the same. Coming on to the constitutional provisions again, that is 39A. 39A says that free legal aid must be provided to the persons to promote justice on basis of equal opportunity. What we do is कि फ्री लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस मीन्स कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास फॉर सम काइंड ऑफ रीज़न, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, हो सकता है पैसों का रीज़न हो, इकोनॉमी से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो, नॉलेज ना हो, या फिर XYZ कोई भी रीज़न हो, वो जब लॉयर हायर नहीं कर पाते, दे डोंट नो कि करना क्या है, दे डोंट नो कि उनके पास कौन से राइट्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे 39A पिक्चर में आता है। 39A एक्चुअल में इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, बट ये DPSP का पार्ट है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह का गाइडलाइन है जहाँ पे स्टेट को इंश्योर करना होता है कि लीगल सिस्टम में अगर हमें मान लो ऐसा मान के हम चलते हैं कि हमें जस्टिस को प्रमोट करना है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिटीजन्स रह जाते हैं जो कि अपने को लीगल एड नहीं दे पाते, या लॉयर हायर नहीं कर पाते, या कोर्ट में खुद को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे क्या होता है कि 39A आता है पिक्चर में, जहाँ पे स्टेट को डायरेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा लॉ ऑफ द लैंड की गो एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस टू द सिटीजन्स, जिनके पास ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक उनको नहीं मिला है। यहाँ फ्री लीगल एड इसलिए है क्योंकि मेन जो फोकस बनता है दैट इज़ इकोनॉमी, और अगर पैसे ही होता तो लॉयर कब का हायर हो गया होता, पैसा नहीं है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, या फिर इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए फ्री लीगल एड इज़ प्रोवाइडेड कि एटलीस्ट वो पर्सन कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सके। सो दिस थिंग हैज़ टू बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है, उसको रिमांड पे लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी में उसे रखा गया है जब तक कि उसका जो केस है वो चल रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी तक नहीं कोई पर्सन आया है, या आया भी है तो वो केस अभी पेंडिंग में है। होता क्या है, रिमांड में ही इतना टाइम लग जाता है कि मान लो सपोज करते हैं कि उसने कोई ऐसा क्राइम किया जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट वाज 2 इयर्स, और होता क्या है अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ, बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है ट्रायल होना। तो यहाँ पे कई बार ऐसे केसेस आए जहाँ पे लोगों ने जुडिशियल कस्टडी में अपनी जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी, जिस एक्ट की वजह से वो उस कस्टडी में थे, उसको भी पार कर दिया है। दैट मीन्स अगर 2 साल की पनिशमेंट मैक्स थी तो फॉर एग्जांपल वो 3 साल उस कस्टडी में रह चुके हैं। तो द थिंग इज कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, जो प्रोपोर्शनेट थी, जो लॉ कह रहा था, फॉर दिस वो लीगल एड और रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से उनको कई बार ये टाइम पीरियड, जो शायद अगर उनका ये एक्ट प्रूव हो जाता तो उनको जितनी सज़ा होती वो उससे भी ज़्यादा उस सज़ा को काट चुके हैं। द पॉइंट इज़ कि अभी तो प्रूव भी नहीं हुआ, प्रूव नहीं होता तो ये तो और भी बड़ा एक कह सकते हैं इन्फ्रिंचमेंट है, एक लक्यूना है, और अगर प्रूव हो गया होता तो उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड वो वहाँ पे रह चुके हैं, जो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। तो यहाँ पे राइट्स जो इन्फ्रिंज हो रहा है, ये तो DPSP हो गया, ये तो गाइडलाइन है जो प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 मोर आर्टिकल्स जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर देता है, दैट इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ कह रहा है, गारंटी कर रहा है दैट देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड 21 बोलता है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स
फेयर ट्रायल और फ्री लीगल एड, वो ऑटो में आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज फेयर ट्रायल इज मेंशन्ड। ये दोनों आर्टिकल्स हम इन डिटेल अपनी फंडामेंटल राइट्स वाली क्लास में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल ये दोनों आर्टिकल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज एक पर्सन को राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी पिक्चर में आ गया है। और सेकेंड हमारा पॉइंट है इंक्लूड्स फ्री ट्रायल, और फ्री ट्रायल आएगा राइट टू लाइफ में। अगर हम बिना कन्विक्ट हुए ही अगर अपनी सज़ा निकाल दे बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के, अपने आप को वहाँ पे जाके प्रेजेंट भी ना कर पाए, तो इट इज़ अ बिग डिनाइल टू बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स, यानी कि दोनों ही तरह से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को बनाया क्यों गया था? बनाने का मेजर रीज़न था कि हम इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कर पाएँ। हमारा प्रियम्बल ही कहता है दैट देयर इज़ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करता है। तो यहाँ पे जस्टिस इज़ अ मेजर वर्ड। 3 तरह के जस्टिस बताए गए थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए ओवरऑल जस्टिस की बात हो रही है कि जितने भी लोग हैं हमें सबको जस्टिस प्रोवाइड करना है। जस्टिस कब मिलेगा? जब कोर्ट में जाके जो पार्टीज़ हैं व्हेन दे स्पीक अबाउट इट, जब पूरा ट्रायल चलता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जजमेंट होता है, चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके अल्टीमेट डिसीजन होता है कोर्ट का। तो यहाँ पे अगर जस्टिस चाहिए तो रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब रिप्रेजेंटेशन ही अगर उसी रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे ही अगर फॉल्ट हो जाता है तो इक्वल जस्टिस इंश्योर करना इज़ नॉट 100% गारंटी। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, ये एक्ट का आना वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स। लोक अदालत्स का मतलब हुआ दैट कि कुछ ऐसे कोर्ट कह सकते हैं जिनको नाम दिया पीपल्स कोर्ट। इस कोर्ट को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। ये जो लोक अदालत हैं, दीज हैव दी स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। और इन कोर्ट्स को इन इंग्लिश वी से दैट इट इज पीपल्स कोर्ट। लोगों की अदालत दैट इज लोक अदालत। ये जो लोक अदालत है वहाँ पे जो भी अवार्ड होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिग्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। जैसे सिविल कोर्ट की डिग्री होती है सेम हम इसे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। ये फाइनल डिग्री होती है एंड इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज़। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को मज़ा नहीं आया या एक पार्टी को अच्छा नहीं लगा तो वो अपील करने चला गया। नो अपील लाइज अगेंस्ट इट। एक बार लोक अदालत का अगर जजमेंट आ गया दैट मीन्स इट इज़ फुल एंड फाइनल। नाउ कम्स प्रमोट लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी का मतलब कि लोगों को एटलीस्ट पता हो कि उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या अवेयरनेस हो कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है कि उनको लॉयर चाहिए तो स्टेट प्रोवाइड करेगा, अगर उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है या सुनवाई नहीं हो रही तो व्हाट राइट्स दे कैरी। तो ये वाला जो एक्ट है स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया था कि जो हमारी हायरार्की है नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुकास, तो इन सब में इन सारे लेवल्स पे हम क्या करें, इस लीगल अवेयरनेस को प्रमोट करें जिससे लोग इस एक्ट का प्रॉपर तरह से फ़ायदा उठा पाएँ। प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। अब फ्री तो है ही क्योंकि फ्री लीगल एड है, रिप्रेजेंटेशन फ्री है। अगर फ्री नहीं करेंगे, अगर मान लो उसमें कुछ कॉस्ट ऐड कर देंगे तो फिर वो एक तरह का प्रिविलेज नहीं हुआ या वो एक तरह का फ़ायदा नहीं हुआ देखा जाए, तो वहाँ पे स्टेट का फिर रोल ही ख़त्म हो जाता है। भाई जिसके पास पैसा है उसको लॉयर हायर करने में इश्यूज़ ही क्या है, वो तो हायर कर लेगा, अच्छे से अच्छा लॉयर हायर कर लेगा। प्रॉब्लम तो उसके साथ है जिसकी स्टेट वल्नरेबल है, जिसका कंडीशन ठीक नहीं है फॉर वन और द अदर रीज़न। नाउ कम्स कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। अब ऐसे तो बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेश हैं, बिल्कुल अभी अभी प्रैक्टिस में गए हैं। केसेस सबको चाहिए बिकॉज इट्स काइंड ऑफ उनका काम ही यही है लिटिगेशन में। तो कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसी भी उसकी क्वालिटी से हम कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में अच्छी लीगल सर्विसेज हैं, दैट मीन्स जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, अच्छे जो प्रोवाइड कर सकते हैं केस में, अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वही वाली यहाँ पे दी जाती है। मतलब स्टेट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ दोज एडवोकेट्स। अब आते हैं हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे, दैट इज़ कि सबसे ऊपर स्टेट लेवल पे कौन सा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का वाला एडमिनिस्ट्रेशन होता है और फिर लाइकवाइज। सो द फर्स्ट वन इन दिस इज नेशनल
one that is on national level, which is called as National Legal Services Authority, that is NALSA. NALSA is the apex body. This is the apex body. अगर हम इस एक्ट की बात करें, एपेक्स बॉडी में जो पैट्रन इन चीफ होता है दैट इज सीजीआई. सीजीआई जो है सिटिंग भी हो सकता है या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है. ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कहलाता है. तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मीन्स जो हेड कर रहा है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को. फंक्शंस क्या होंगे, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना, प्रिंसिपल्स फ्रेम करना, लीगल सर्विसेज की स्कीम क्या होंगी, फंड्स को एलोकेट करना, जैसे स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना जिससे कि सोशल जस्टिस, लिटिगेशन और लीगल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके. तो सबसे जो अपर लेवल है दैट इज़ द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल में द अथॉरिटी इज़ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट इज़ नालसा. नेक्स्ट कम्स इज स्टेट लेवल. स्टेट लेवल आ जाएगा सालसा. सालसा इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. जितनी भी नालसा की पॉलिसीज़ है, जब वो एक पर्टिकुलर स्टेट अपनी पॉलिसीज़ में उसको अप्लाई कर दे, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नालसाज पॉलिसी एंड डायरेक्शंस, और वो विद इन स्टेट उसको फॉलो करने लगे, सो दैट कम्स अंडर द सालसा. सालसा का जो कॉम्पोजिशन है वो उसी जो चीफ जस्टिस है उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट का, वही दैट वुड बी इन पैट्रन इन चीफ, और या फिर हाई कोर्ट जज जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो जाएगा. सो यहाँ पे पैट्रन इन चीफ इज चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. नाउ नेक्स्ट कम्स इज द थर्ड लेवल विच इज डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल में आता है हमारा डालसा. डालसा में इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. एवरी डिस्ट्रिक्ट में इसलिए होता है टू इम्प्लीमेंट लीगल एड प्रोग्राम्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, क्योंकि स्टेट में एक अथॉरिटी है, स्टेट इतने बड़े हैं, हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, उसको कवर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, और एक एक इंडिविजुअल तक लीगल एड पहुँचाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा. इसीलिए स्टेट के बाद भी और एक और लेवल पे बनाया गया है डालसा, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल एड प्रोग्राम्स को चलाना इसका काम होगा. वही सेम जो ऊपर जो पॉलिसीज़ अप्लाई हो रही थी उन्हीं को अपनी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर देना. यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएगा. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब कि इसकी जो अथॉरिटी होगी दैट वुड बी डिस्ट्रिक्ट जज. नाउ कम्स फोर्थ, दैट इज तालुक. जो तालुक्स होते हैं दीज आर एट द लेवल्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जो ये तालुक या ग्रुप ऑफ तालुक्स होते हैं, यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्टिविटीज़ को, वहाँ पे लोक अदालत को ग्रास रूट लेवल्स पे बात करी जाती है. तो यहाँ पे जो सीनियर सिविल जज होता है दैट बिकम्स दी कॉम्पोजिशन ऑफ दिस TLSC जो हेड करेगा उनको. इसमें कुछ और कमिटीज़ भी होती हैं. समटाइम्स देयर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कमिटीज़. इस्टेब्लिश करने का जो पावर है वो इसी एक्ट में दिया हुआ है. ये जो लीगल सर्विसेज कमिटी है ये क्या करती हैं, दीज प्रोवाइड लीगल एड इन देयर रिस्पेक्टिव कोर्ट्स. जैसे हाई कोर्ट है तो अपने कोर्ट में लीगल एड प्रोवाइड करना, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो अपने एरिया में लीगल एड प्रोवाइड करना उनका काम होगा. अब आते हैं की प्रोविजंस की. इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस कौन कौन से हैं, 12, 13 एंड 19 to 22. तो पहला वाला जो सेक्शन है वो बताता है हु इज़ एलिजिबल. यहाँ पे एलिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कौन ये केस जो है, मतलब ये जो फ्री लीगल एड वाली चीज़ है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस एक्ट में लीगल सर्विसेज का जो फ़ायदा है वो ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो पहला तो हो गया विमेन एंड चिल्ड्रेन, मोस्ट वल्नरेबल. सेकेंड इज जो SCs और STs जो हैं उनके मेंबर्स हैं. इंडस्ट्रियल वर्कमैन भी ले सकते हैं. विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, या फिर कह सकते हैं जो फोर्स्ड लेबर होती है, यानी जो बेगार होता है, बेगार बोलते हैं फोर्स्ड लेबर को, और वो लोग प्लस जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन बींग्स उनको भी. कोई डिसेबल्ड पर्सनस या कोई ऐसे पर्सनस दोज हु आर मेंटली इल वो भी आ जाएंगे. अब पर्सनस इन कस्टडी तो ऑटो में होगा क्योंकि वो कस्टडी में ऑलरेडी है, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी लीगल एड प्रोवाइड करना इज द टास्क.
ऐसा कोई मास डिजास्टर या ऐसा कोई एथनिक वायलेंस जो कि कास्ट वगैरह के पीछे हो गया हो, या फिर कोई फ्लड, ब्रॉड अर्थक्वेक, या फिर कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ हो, तो वहाँ पे जो मास डिजास्टर के जो विक्टिम्स होते हैं दे कैन ऑल्सो गेट द हेल्प फ्रॉम दिस लीगल एड। पर्सन्स इन रिसीट ऑफ एन एनुअल इनकम बिलो अ स्पेसिफाइड लिमिट, कुछ ऐसे लोग जो कि एक एनुअल इनकम स्पेसिफाई करती है गवर्नमेंट, अगर उस स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक लिमिट से भी अगर नीचे उनकी इनकम है तो वहाँ पे वो इस फ्री लीगल एड को ले सकते हैं। अब ये जो लिमिट है ये हर कोर्ट की अलग अलग होती है और ये सेंटर से अलग मिलती है, स्टेट से अलग मिलती है। डिपेंड्स कि आपके स्टेट में और आपकी कोर्ट में जहाँ पे भी आपका केस गया हुआ है वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट एक्चुअल में क्या है। Next is section 13, aids can be refused. This means 13 कहता है एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, मतलब ये सेक्शन क्या है, फॉलो अप है ऑफ सेक्शन 12 का, जहाँ पे 12 ने क्या बताया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 13 बताएगा कि जो लोग इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं सेक्शन 12 में वो ही एक्चुअल में एंटाइटल्ड होंगे ऑफ दीज रिसीविंग दी लीगल सर्विसेज। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राइमा फेसाई केस देखा जाता है। ऐसा पर्सन जो सेक्शन 12 में लाई कर जाएगा वो लीगल सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाएंगी और कंसर्न्ड अथॉरिटी ये देखेगी दैट जो सर्च पर्सन है प्राइमा फेसाई केस है कि उसको प्रोसिक्यूट या फिर डिफेंड करने के लिए ये सर्विस हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। मतलब इट्स अ केस ऑफ जेन्युइन या आर्ग्यूएबल केस है, कोई फ्रिवलेस या बेसलेस केस नहीं बनता है। दूसरा आता है एफिडेविट ऑफ इनकम, जहाँ पे एक एफिडेविट वो पर्सन बनाता है, वो अपनी तरफ से एक एफिडेविट देता है अपनी इनकम को लेके कि ये जो इनकम है ये इनसफिशिएंट है और इसको देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, और ये जो अगर उसकी कम इनकम है दैट वुड बी कंसीडर्ड सफिशिएंट फॉर दी एलिजिबिलिटी, जब तक कि अथॉरिटी को ये रीज़न ना मिल जाए उसको डिसबिलीव करने का। तो ये जो प्रोविजन है सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, और ये जो एप्लीकेंट्स हैं इनका एक तरह के ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स होते हैं, जो इश्यूज आते हैं, उनको रिड्यूस करने में काम करता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट दैट इज 19 to 22। 19 से लेके 22 तक इट्स ऑल अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। तो ये सेक्शन कहता है कि लीगल बेसिस क्या है लोक अदालत को इस्टेब्लिश करने का। तो मेजर कंपोनेंट जो बनता है दैट इज ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं कि जिससे कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने की कंडीशन में आ जाते हैं, जिससे कि फर्दर जो नॉर्मल कोर्ट्स का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो सके और केस डिस्पोज हो सके। अब इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है ऑर्गेनाइज करने की? द पावर ऑफ अथॉरिटी टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत इज वेस्टेड इनटू डिफरेंट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। जैसे कि अभी हमने इसके पहले स्लाइड्स में देखा नालसा डालसा, तो नालसा तो पॉलिसी बना रही है, इसके बाद जो ये सालसा है, डालसा है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमिटीज़ हैं, तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी है, इनको पावर होता है लोक अदालत को कंपोज कराने का या उनको ऑर्गेनाइज कराने का। कॉम्पोजिशन क्या होता है लोक अदालत का कि उसमें कोई एक जुडिशियल ऑफिसर होगा जो सर्विंग भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है, और उस एरिया के अदर पर्सन्स भी हो जाएंगे। अब उन पर्सन्स की क्वालिफिकेशंस और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं ये सब प्रिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जुरिस्डिक्शन जो होता है लोक अदालत का वो डिस्प्यूट सेटल करने के मामले में दो टाइप से आता है। पहला जुरिस्डिक्शन हो जाएगा एनी केस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, किसी भी केस को वो जज कर सकता है। और दूसरा होता है एनी मैटर विच इज फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट बट हैज नॉट येट बीन ब्रॉट बिफोर इट, यानी जो प्री लिटिगेशन स्टेज होती है कि फॉल तो करता है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में बट अभी तक लेके नहीं आया गया है कोर्ट में। तो यानी कि दो तरह के केस जो ऑलरेडी चल रहे हैं, एक तो जो ऑलरेडी चल रहे हैं और दूसरा ये कि जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं बट अभी तक कोर्ट में नहीं आए, तो प्री लिटिगेशन स्टेज में है। जो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन इन पे प्रोवाइड किया जाता है दैट इज कि लोक अदालत हैज नो जुरिस्डिक्शन ओवर केसेस रिलेटेड टू ऑफेंसेस दैट आर नॉट कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ। मतलब जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं करे जा सकते वो लोक अदालत में रिजॉल्व नहीं होंगे। तो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस वाले केसेस हैं
बेसिकली जो बहुत सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर ही नहीं सकते, विच आर नॉट कंपाउंडेबल एट ऑल, तो वो लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन दी लोक अदालत। अब अगला आता है सेक्शन हमारा सेक्शन 20, दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत, कि लोक अदालत किस तरह के केसेस लेता है। तो पहला मैंने बताया पेंडिंग केसेस ले लेता है। पेंडिंग केसेस में जैसे मान लो पार्टीज जो हैं डिस्प्यूट में वो अग्री कर जाती हैं कि ठीक है हम लोक अदालत चलते हैं, वहाँ पे हम अपना जो केस है उसको फिनिश कर लेंगे, डिस्पोज करते हैं, जजमेंट लेते हैं और ख़त्म करते हैं। यहाँ पे जो कोई भी एक पार्टी है या तो वो कोर्ट चली जाती है, अपना केस रेफर कर देती है और कोर्ट को ऐसा सेटिस्फाइड, जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है उस कोर्ट की बात कर रही हूँ, दैट वहाँ पे जो कोर्ट है वो भी सेटिस्फाइड है दैट देयर आर चांसेस ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग इन माइंड कि जो भी केसेस है वो इस सेटलमेंट वाले पॉइंट को मीट करना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कि सेटलमेंट हो ही नहीं सकता और आप लोक अदालत चले गए, वो केस ही नहीं बनता जिसमें सेटलमेंट हो पाए। तो यहाँ पे कोर्ट भी ये देखती है कि क्या चांसेस हैं सेटलमेंट के, तो वो जो केस है फर्दर लोक अदालत के पास चला जाता है। कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए दैट दिस मैटर इज एप्रोप्रिएट फॉर लोक अदालत, तभी वो इस केस को फर्दर रेफर करती है। एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है दैट कोर्ट मस्ट प्रोवाइड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज बिफोर रेफरिंग द केस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैटर करता है। अब आते हैं प्री लिटिगेशन पे। पहला तो हो गया कि जो ऑलरेडी केस चल रहे थे हमने वही रिफर कर दिए, केस को कोर्ट को ठीक लगा कि ठीक है इसमें सेटलमेंट हो सकता है तो उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा आता है प्री लिटिगेशन मैटर्स। प्री लिटिगेशन मैटर कौन से होते हैं, जो अभी तक एक भी बार कोर्ट में नहीं आए, यानी कि जो अथॉरिटी या जो कमिटी लोक अदालत को फर्दर ऑर्गेनाइज कर रही है तो वो कॉग्निजेंस लेती है फर्स्ट टाइम उस मैटर पे। तो एप्लीकेशन किसी भी पार्टी का हो सकता है डिपेंडिंग की कौन सी पार्टी अप्रोच करी है। सिमिलर टू पेंडिंग केसेस, यहाँ पर भी क्या है, पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनकी सुनवाई होती है। जब भी कोई केस रेफर होता है लोक अदालत को तो इट मस्ट प्रोसीड विद utmost एक्सपेडिशन, कि वो सेटलमेंट पे अराइव होना इज कंपल्सरी, गाइडेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले। यहाँ पे इफ अगर कोई भी ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, इफ नो कॉम्प्रोमाइज इज रीच्ड, तो जो केस का रिकॉर्ड है इज रिटर्न टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज रेफर्ड, और वहाँ जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से उसको रेफर किया गया था लोक अदालत में, अगर वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटलमेंट पे नहीं आके रुकता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, तो वो बैक टू दैट कोर्ट चला जाता है, और जब वो बैक में जाता है तो वो उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट होता है जहाँ से उसको फर्दर फॉरवर्ड किया गया था। नेक्स्ट कम्स सेक्शन 21 दैट इज अवार्ड ऑफ लोक अदालत। अवार्ड ऑफ लोक अदालत में ये जो एक्ट है ये एक तरह का स्टैट्यूटरी फोर्स दे रहा है लोक अदालत को, तो उसके डिसीजन किस तरह के डिसीजन कहलाएंगे या कैसे डिसीजन, उसका नेचर कैसा होगा, टॉक्स अबाउट सेक्शन 1 इस बारे में बात करता है अबाउट अवार्ड ऑफ लोक अदालत। तो इसको कहते हैं डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री का मतलब हुआ, डिक्री क्या होता है जो सिविल कोर्ट देता है, डीम्ड डिक्री का मतलब क्या हुआ कि लोक अदालत जो अवार्ड पास करेगा उसको हम डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट की तरह मानेंगे, यानी सेम टू सेम एज दी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, तो डीम टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। और जैसा भी केस होगा दिस गिव्स इट द सेम लीगल एनफोर्सेबिलिटी जैसे कि किसी भी कोर्ट के जजमेंट की होती है। फाइनल और बाइंडिंग होता है ऑन ऑल पार्टीज जो भी डिस्प्यूट में है। इसके बाद सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट इज नो अपील शैल लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट दैट अवार्ड, क्योंकि आप खुद ही से उस सेटलमेंट पे अग्री हुए हो। जब आप खुद ही उस सेटलमेंट पे अग्री हो गए हो, सेटलमेंट फाइनल हो गया है, डिक्री उस कोर्ट की लोक अदालत की डीम्ड डिक्री जो है वो फाइनल हो गई है, तो अब कोई अपील नहीं होगी क्योंकि आप ही खुद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए लोक अदालत गए थे, या तो सेटल ना हो केस, अगर सेटल हो गया है तो बाद में देयर इज नो पॉइंट ऑफ अपीलिंग। ऐसा इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है जिससे जो सेटलमेंट हो वो फाइनलाइज हो जाए और फर्दर लिटिगेशन कंटिन्यू ना हो, क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर अपील करते हो तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, जिस कोर्ट में लड़ रहे थे वहीं लड़ते रहते, वहाँ का जजमेंट आता फिर आप जाके अपील करते, तो बीच में लोक अदालत का तो कोई पॉइंट ही नहीं था। ये तो फिर एक तरह का बर्डन हमने ले लिया कि एक कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र करो, बैक टू फिर उसी कोर्ट में आ जाओ क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ और फिर अपील कर दो।
तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमारा मोटो भी ये भी था कि जिससे कि हम केसेस को कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू जो केसेस सेटल हो सकते हैं उसके थ्रू हम अपना जो बर्डन है उसको कम कर सकें। अब बर्डन अगर कम नहीं हो रहा है, केस अगर बाइंडिंग नहीं है, अपील का हमने राइट दे दिया अगर, तो फिर वो केस कभी ख़त्म होगा ही नहीं, उसका बर्डन बहुत साल तक चलता रहेगा और ऐसी पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आता है कोर्ट फीस का रिफंड होना। अगर मान लो कोई केस पेंडिंग है और वो ऐसा केस है जो लोक अदालत में गया हुआ है और सेटलमेंट हो जाता है, तो जो कोर्ट फीस है वो ओरिजिनल कोर्ट में जो पे करी गई थी इज़ रिफंडेड टू द पार्टीज़। ये एक तरह का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जिससे कि जो लोग हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो कोर्ट फीस के फॉर्म में उसको रिफंड कर देते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22 पावर्स ऑफ लोक अदालत। ये जो एक्ट का सेक्शन है ये क्लैरिफाई करता है कि क्या क्या लीगल पावर्स और ड्यूटीज़ जो स्टेटस है वो दिया गया है लोक अदालत को। तो फर्स्ट इज जितनी भी सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं एज इट इज़ लोक अदालत के पास भी वही पावर्स होंगी। तो CPC 1908 इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स जैसे कि समन करना हो गया या फिर विटनेसेस की अटेंडेंस हो गई, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स हो गए, या फिर अगर मान लो कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स की कोई रिक्वेस्शनिंग करनी है वो भी हो जाएगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि एक सिविल कोड को प्रोवाइड करता है CPC। तो CPC में जितने भी जो पावर्स और फंक्शंस दे रखे हैं सिविल कोड को एज इट इज़ लोक अदालत को भी वही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होंगी उसको ऑल प्रोसीडिंग्स जो भी लोक अदालत करेगा उसको वो सारी प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सिविल कोर्ट स्टेटस प्रोवाइड करता है CRPC सेक्शन 195 के अंडर, दैट इज कि अ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। नाउ वी कम ऑन टू दी बेसिक लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि बताते हैं कि कौन कौन से केसेस में हमें ये देखने को मिला है कि जो इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं कि जहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट था इसको एक एवोल्यूशन मिला। तो सबसे पहला केस हमारे पास है दैट इज़ हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून केस में क्या हुआ था, लीगल एड को एक बेसिक फंडामेंटल राइट की तरह देखा गया था। इस पूरे केस का नाम है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। सबसे इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम राइट टू फ्री लीगल एड वाज एडेड। ये एक तरह का PIL था इस केस में, और इसमें जो इनह्यूमन कंडीशंस थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बिहार में उनके बारे में ये केस गया था। मेनी ऑफ whom had been jailed for periods longer than maximum sentence for their alleged crimes। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैक्सिमम क्राइम अगर प्रूव हो जाता है, वो भी अभी तो प्रूव ही नहीं हुआ है, अगर प्रूव हो जाता है उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो अपना सेंटेंस काट चुके हैं ऑलरेडी इन द जेल, केस कंप्लीट होने के पहले ही, जजमेंट आने के पहले ही। तो इस केस में सबसे बड़ा मोड़ लिया था 1979 में कि उसने ये रिकग्नाइज किया कि ये जो राइट टू लीगल एड है दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट, और ये एक PIL फाइल हुई थी। इसमें जो जजमेंट था वो जस्टिस PN भगवती का था। उन्होंने बोला था राइट टू स्पीडी ट्रायल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये हमारा आर्टिकल 21 हमें बोलता है। द कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया दैट अगर ये एक फंडामेंटल राइट है तो एक और राइट इससे आता है दैट इज लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड अ फ्री लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिजेंट एक्यूज्ड। और ये एक इसेंशियल कंपोनेंट बन जाता है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस या कह लो रीजनेबल फेयर और जस्ट प्रोसीजर के थ्रू। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको कंसीडर किया जाएगा कि स्टेट यहाँ पे फेल हो गया टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, और वो आर्टिकल 21 का वायलेशन कहलाएगा। सो दिस हुसैन आरा केस, हुसैन आरा खातून केस वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द एवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ
बिहार। 1981 का केस है। यहाँ पे एड एट अरेस्ट मैंडेटरी किया गया था। इस केस में क्लैरिफाई किया गया, और ये जो पहले वाले केस में जो हमें राइट मिला है ना, राइट टू लीगल एड, इसका स्कोप थोड़ा और नैरो से और एक्सटेंड कर दिया गया था, और स्टेट ड्यूटी को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया गया। बिकॉज देखो, कोई भी राइट आता है तो एट द इंस्टेंस राइट आया, बट उसके बाद उसकी जो इंटरप्रिटेशंस आती हैं वो उसका और ज़्यादा स्कोप जो है उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है। तो समवॉट हुसैन आरा खातून के बाद जो ये खत्री वर्सेस बिहार केस आया, इसने भी इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कैसे किया कि कोर्ट ने ये माना कि राइट टू फ्री लीगल एड एक राइट है, और स्टेट अगर ऐसे कोई एक्टिव स्टेप्स नहीं लेता है तो फिर वो वायलेशन हो जाएगा। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऐसे एक्टिव स्टेप्स लेने हैं एंड इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ऑफ दिस राइट कि उसके पास ये पर्टिकुलर राइट फॉल करता है। यहाँ ये डिक्लेयर किया गया था कि जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं या जितने भी सेशंस जज हैं, इनकी ये ड्यूटी है कि वो जितने भी एक्यूज्ड पर्सन्स जो आए हैं उनको उनके सामने, जो क्योंकि उनको सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो जो वो आए हुए हैं उनको इन्फॉर्म करना इज़ द ड्यूटी ऑफ दीज मैजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस, कि आप उन लोगों को ये बताएंगे कि आप यहाँ क्यों हैं एंड हु नॉट रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर, और अगर मान लो वो लॉयर्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हुए तो उनको फ्री लीगल एड की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ड्यूटी दे दी गई किसकी, मैजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस को, कि आप ही को बताना है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। और दूसरा कि रीज़न तो मान लो अथॉरिटीज़ ही बता देती हैं कि आपको क्यों आए हैं, इतना तो पता होता है, बट आप किस वजह से आए हैं, प्लस अगर आपके पास लॉयर है तो ठीक है, नहीं लॉयर है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उनको कैसे लॉयर मिल सकता है, कैसे उनको स्टेट फ्री में लॉयर दिलाएगा और उसका पूरा खर्चा स्टेट उठाएगा, ये चीज़ उनको बताने का काम किसका होगा, मैजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस का। नेक्स्ट आता है सुखदास केस। सुखदास वॉज इन 1986, सुखदास वर्सेज यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ट्रायल विदाउट एड वॉइड। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट है इसने एक तरह से मैंडेटरी कर दिया था प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द पुअर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू एन इंडिजेंट एक्यूज्ड इज मैंडेटरी, और ये एक ऐसा पार्ट है जो नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि स्टेट का ऑब्लिगेशन है अंडर आर्टिकल 21 की प्रोवाइड करना ही करना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस थिंग। तो यहाँ पे बोला कि अगर मान लो फेल हो जाता है लीगल एड प्रोवाइड करने में किसी इंडिजेंट एक्यूज्ड को, जब तक कि एक्यूज्ड खुद ही ना मना कर दे, तो वहाँ पे जो ट्रायल चल रहा है वो ट्रायल क्या हो जाएगा, वॉइड। तो पोटेंशियली लीडिंग द सेटिंग असाइड ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंस। अगर ट्रायल चला, जजमेंट आ गया, सब हो गया, बट पता चला कि वो पर्सन केस में रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ प्रॉपर, तो वहाँ पे उसको वॉइड माना जाएगा, बिकॉज आप फेल हो गए उसको लीगल एड प्रोवाइड करने में। और बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो स्टेट ने ऑफर किया कि ठीक है हम आपको लॉयर दे देते हैं, मगर एक्यूज ने खुद ही मना कर दिया, अनलेस एक्यूज उसको मना नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे जो ट्रायल होगा दैट वुड बी वॉइड। तो वो ट्रायल को ही वॉइड मान लेंगे, जजमेंट तो दूर, जजमेंट तो आए ही नहीं, जजमेंट तक तो गए ही नहीं हम, ट्रायल ही वॉइड हो जाएगा। अब इसमें एक लास्ट केस है, दैट इज इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ अहमद केस आया था इन द ईयर 2012, और इसने बोला स्पीडी ट्रायल पार्ट ऑफ एड। स्पीडी ट्रायल पार्ट ऑफ एड, ये इम्तियाज़ अहमद का जो केस है ये स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। इस स्टेज में क्या हुआ था कि की ऑर्डर्स हमें 2012 में मिले थे, बट फाइनल जजमेंट जो कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट आया था वो 2017 में आया था। तो इस केस में चैलेंज हुआ था कि अगर स्टेट फेल हो जाता है टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करने में, क्योंकि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस होते हैं और केस जो है इतना पेंडिंग चला जाता है कि बहुत साल लग जाते हैं उसका जजमेंट आने में, तो इसका मतलब इट्स अ वायलेशन ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल, जो कि अभी ऊपर आर्टिकल 21 में हमें दिया गया, अभी अभी आर्टिकल प्रोवाइड किया है, अभी अभी राइट प्रोवाइड किया है, और अब बोल रहे हैं दैट इट इज़ द डिनाइल ऑफ दैट राइट, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी गई कि जो जुडिशियल डिलेज है, जो बैकलॉग है, उसको हमें धीरे धीरे ख़त्म करना है, और ये एक
अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते हैं दैट देयर आर सो मेनी केसेस पेंडिंग फॉर ओवर 2 decades। तो ये चीज़ समझ में आई। इनएडिक्वेट जज स्ट्रेंथ है, जो पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत कम है, इसीलिए इट्स अ प्राइमरी रीज़न कि इतना डिले क्यों हो रहा है। ये समझ लो, अगर रेशियो देखा जाए तो एक एक जज पे 1 लाख लोग हैं, और इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में ऐसा जजमेंट कर पाना और इतने बैकलॉग्स के बाद उन बैकलॉग्स को ख़त्म करना और नए केसेस रोज आ ही रहे हैं, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इसी वजह से लॉ कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स आई थी, इस पर्टिकुलरली 120 एंड 124th रिपोर्ट, जिसने बताया था, जो एक तरह का रिकमेंडेशन था लॉ कमीशन का। वो रिकमेंडेशन इसलिए था दैट वी शुड मोर स्ट्रेस ऑन दैट टू नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। तो जो राइट टू स्पीडी जस्टिस है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, ये जो फंडामेंटल राइट है ये हम उनको दे पाएंगे। एंड स्टेट को अगर ये इंश्योर करना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि रूल ऑफ लॉ अंडरमाइंस हमेशा हो। तो दीज वर सम ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है एज पर आर केस। नाउ देर आर सर्टन चैलेंजेस ऑल्सो। पुअर अवेयरनेस, कि लोग खुद ही अवेयर नहीं होते हैं, कई बार क्या होता है प्रेशर में आके मना भी कर देते हैं। तो यहाँ पे पुअर अवेयरनेस की वजह से ये एक्ट 100% अप्लाई करना इज स्टिल अ बिग टास्क। लो क्वालिटी लीगल एड लॉयर्स, अब होता क्या है, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड है एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। अब स्टेट के पास फिर ऑप्शंस कम हो जाते हैं, और इन ऑप्शंस में क्या होता है, कई बार क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि द थिंग, एक वर्ड ऐड हो जाता है दैट इज़ फ्री। लॉस तो कह रहे हैं कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या हो रही हैं, तो इट बिकम्स अ चैलेंज कि जो लॉयर केस लड़ रहा है या जो एडवोकेट जाके अपना पार्ट वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो फुल कमिटमेंट और फुल डेडिकेशन के साथ वो चीज़ कर रहा है, बिकॉज इट्स अ फ्री थिंग, फ्री लीगल एड। और क्या स्टेट उस एडवोकेट को प्रॉपर पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस होल थिंग। अंडर फंडेड सिस्टम मतलब कि हाई कोर्ट से जो पॉलिसीज़ और जो स्कीम्स बनती हैं उनका फंड आता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के पास। अब ये जो फंड है ये क्या अंडर फंडेड है, या जो फंड है वो बीच में कहाँ जा रहा है, करप्शन है या डायरेक्टली पहुँच रहा है, लोगों तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, वी जस्ट डोंट नो अबाउट दिस। फैक्ट्स तो कहते हैं दैट इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। नाउ कम्स नो अपील फॉर लोक अदालत अवार्ड्स। it is I think that it is not a challenge because यहाँ पर जो लोग हैं, लोगों को ये चैलेंज इसलिए लगता है क्योंकि आपको अपील नहीं मिलती है। अब अगर एक बार आपने सोच लिया कि नहीं ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हमें सेटलमेंट करना है, सेटलमेंट करके वी जस्ट मूव बैक, हमारा केस डिस्पोज हो जाएगा यहाँ से, तो वहाँ पे पार्टीज़ जाती हैं लोक अदालत। अब मान लो कि सेटलमेंट जो हुआ उस पर पार्टीज़ अगर नहीं राज़ी हैं तो आप वहीं से बैकआउट कर लो। ये जो अपील वाला चीज़ है लोक अदालत अवार्ड्स के ऊपर, ये अभी अप्लाई नहीं होती है, वरना हमारा बैकलॉग वाला जो पॉइंट है वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हम अपने ही केसेस नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो फिर जो नए केसेस आ रहे हैं फिर हम उनका भी फिर डिले होता चला जाता है, और फिर वो भी एक तरह का बर्डन क्रिएट होता है। So now the first question I'll discuss the role of legal services authorities in ensuring access to justice in India, asked in 2023। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन दे देंगे कि एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 39A, और आर्टिकल 39A को फुलफिल करने के लिए एक एक्ट है दैट इज़ LSAA, दैट इज़ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जो कि 1987 में आया था। इसके बाद आ जाएगा रोल ऑफ LSA। रोल कैसा हो जाएगा, जैसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना टू वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली वीक पीपल, women, children, marginalized group, SCs, STs, bonded laborers, etc. लोक अदालत को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और स्पीडी डिस्पोजल कैसे होगा केसेस का, जिससे कि बर्डन्स को रिड्यूस किया जा सके। कंडक्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हम लेके आएँ, जिससे कि लोगों को पता हो कि व्हाट आर द राइट्स दे कैरी एज अ इंडिविजुअल, और इंडिया में उनको किस तरह के राइट्स मिल रहे हैं फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग। विक्टिम कंपनसेशन मीन्स की फैसिलिटेट करना कंपनसेशन स्कीम्स फॉर जो भी
क्राइम्स के जो विक्टिम्स हो गए हैं उनके लिए। स्पेशल सर्विसेज में आ जाता है जैसे लीगल असिस्टेंस टू अंडर ट्रायल्स जो होते हैं, या फिर ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स होते हैं, ऐसे लोग जो अभी कस्टडी में ही हैं, तो उनके लिए स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एडीआर का मतलब होगा कि जो ऐसे मैकेनिज्म जैसे मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसीलिएशन, ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये एडीआर के अंदर आते हैं, दैट इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये प्रमोट करते हैं इस तरह की रेमेडीज़ को जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बिना किसी लड़ाई झगड़े के पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। चैलेंजेस यही बन जाएंगे कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, बेनिफिशरीज को खुद ही नहीं पता है कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं या जो लॉयर्स हैं दोज आर वेरी लेस ट्रेंड, या उनकी भी शॉर्टेज है। जो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, स्टार्ट तो कर दिया, अलग अलग अथॉरिटीज़ डिवाइड कर दी, हायरार्की बना दी, बट एक्चुअल में उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, दीज आर सम व्हाट द चैलेंजेस ऑफ दीज थिंग्स। नाउ कंक्लूजन में वी कैन मेंशन कि जो एलएसए है इट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ द एक्सेस टू जस्टिस को इंश्योर करता है। रिफॉर्म्स में थोड़ा सा आउटरीच है, फंडिंग का इश्यूज़ है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नेसेसरी है देखना, तो बेटर इफेक्टिवनेस के लिए वी शुड वर्क ऑन द सेम। यहाँ से हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है, द फुल आंसर इज जस्ट डन। तो इस तरह से जब हेडिंग हमें पता होगी कि एक आंसर है उसको फ्रेम कैसा करना है, तो धीरे धीरे व्हेन वी वुड प्रैक्टिस द थिंग, क्योंकि अब क्या है टॉपिक आता है, पहले क्या था टॉपिक पता ही नहीं था, अब क्या है टॉपिक पढ़ने के बाद वी नो कि हम किस बारे में बात करें, तो आंसर लिखना इज़ अ बिट ईजी, एटलीस्ट हेड्स लिखना इज़ अ ईजी थिंग। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक स्टेटमेंट है दैट इज लीगल एड इज नॉट अ चैरिटी बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टेट, एल्यूसिडेट इन लाइट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। 2020 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगेन जब भी इस टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन देंगे 39A इज कंपलसरी आर्टिकल जो मेंशन होगा। इसके बाद लीगल प्रोविजंस में हम आएंगे, 14 एक्सप्लेन करेंगे, 21 एक्सप्लेन करेंगे और LSAA एक्सप्लेन करेंगे। LSAA मतलब कि इस तरह का भी एक्ट है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में हमने ये तीनों डिस्कस करे हैं इन डिटेल अभी पहले वीडियो में, दैट इज हुसैन आरा खातून केस, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों केसेस में कौन कौन से मेजर चीज़ें जो हेल्ड हुई थी वो हमारा फॉर्म बनेगा आंसर का। लास्ट में कंक्लूजन, दैट इज लीगल एड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द सबस्टैटिव इक्वालिटी और अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। तो यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इट्स नॉट अ वॉलंटरी एक्ट बट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द स्टेट। सो ये आंसर हमारा यहाँ से डन है। Next comes question number 3. Explain the statutory framework for free legal aid in India. How effective has it been in ensuring justice to the marginalized? This question was asked in 2017. तो statutory framework में constitutional basis में हम सबसे पहले बता देंगे हमारा 14 and 21। LSAA में सारी जितनी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे हो गया नालसा, सालसा, है ना, डालसा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा तालुक्स वाला, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तालुक्स। और ये क्या है, ये सारी क्या करती है, ऑर्गेनाइज करेंगी लोक अदालत। तो लोक अदालत में किस तरह के एमिकेबल सेटलमेंट्स होते हैं वो भी मेंशन कर देंगे। रेगुलेशन एंड स्कीम्स में आ जाएगा, जैसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आती है, अलग अलग लिटरेसी मिशंस होते हैं, बहुत सारे लीगल एड क्लिनिक्स चलते रहते हैं, तो वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस में दो चीज़ें होंगी, नॉट गोइंग इनटू द नेगेटिव वर्ड, तो पहला हो जाएगा पॉजिटिव इम्पैक्ट, दूसरा लिमिटेशंस। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, तो मिलियंस ऑफ केसेस जो हैं वो लोक अदालत के थ्रू सेटल कर दिए जाते हैं। लीगल अवेयरनेस कैंपेन की वजह से लोगों को पता चलता है, वी आउटरीच द पीपल जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, एंड दे एक्चुअली प्रोवाइड गेट्स दी हेल्प ऑफ दिस लीगल एड, और वो अपना केस लड़ पाते हैं। फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज अंडर ट्रायल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, बहुत बड़ी एक हेल्प हो जाती है। लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी, जैसे कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है भी तो ट्रस्ट नहीं है, जो जिनको ये फ़ायदा मिल रहा है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये फ्री है तो मतलब अच्छी होगी कि नहीं होगी। हम अभी हमारे पास मैन पावर ही वैसे देखा जाए तो वो भी एक ड्रॉबैक है हमारे पास। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई बार क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लीगल एड जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है इसकी जो क्वालिटी है उससे भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो द थिंग इज़ कि कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन आता है,
कंक्लूजन में बिकॉज लिमिटेशन थी तो लिमिटेशन से एंड नहीं करेंगे, वी कम ऑन टू द कंक्लूजन दैट हमारा फ्रेमवर्क तो बहुत अच्छा है, दैट इट्स अ रॉबस्ट फ्रेमवर्क ओवरऑल, बहुत अच्छा एक्ट है, बट इसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगी कि हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं, कितना ज़्यादा हमारे पास अवेयरनेस और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो हमेशा चेक्स एंड बैलेंसेस लगा पाएँ कि जो अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं या जो भी काम इनको दिया गया है दैट इज़ इन full capacity given in 100% profit or benefits to the beneficiaries which are under this thing. Okay, so thank you so much. We are ending this class. I hope ये जो topic है Legal Services Authorities Act, ये आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि इसके बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, किस तरह से ये फंडामेंटल राइट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैरेलली काम करता है, and why this is important to know the exact important provisions जो कि important होंगे. So I hope you are understanding जो भी classes में I am explaining you. और इसके बाद भी अगर कोई confusion होता है तो you can always comment down below and I'll reply to all of your comments. अगर कुछ ऐसा निकल के आता है जिससे जो मुझे extra discuss करने की ज़रूरत है तो I'll make another video on that also. So thank you for watching. Like, share and subscribe also. Thank you so much.